Hello everyone, how are you all? I hope all are doing absolutely great and amazing. And our today's topic is a new chapter. This is fluid mechanics. So at first I will give the heading. Fluid mechanics. Fluid mechanics is one of my favorite topics. So fluid mechanics के अंदर we'll read about fluids, Generally, what is fluid? Fluid is a substance. It is a substance that can flow. So if they have a substance which can flow, since we call this is a fluid. Okay, it is a substance that can flow. What is substance? Yes, what is substance? Substance is thing that has some mass and it occupy some place. If they have a thing which has some mass and it occupies some place. Yes, generally we know there are two types of fluids. One is liquid, another is gas. One is liquid, another is gas. There are two fluids, there are two types of fluid. One is gas and one is liquid. So in the fluid mechanics chapter, we will read, they have two branches of this. One is hydrostatics, another is hydrodynamics. Now we will know some characteristics of fluids. Some characteristics of fluids. Some characteristics of fluid. Now we will talk about characteristics. First is it has a finite mass. Next, it can flow. Third is it has no shape. It has no particular shape. If this is a fluid like this, it has no particular shape. If I will tilt the bottle like this, then the water is flow. वाटर जो इसके अंदर है वो क्या करेगा? फ्लो करेगा. ठीक है, अब देखो. सो इट हैज नो पर्टिकुलर शेप. तो ये हो गया हमारा बेसिक थिंग्स अबाउट फ्लूइड. आज का जो की पॉइंट है फॉर टुडेज लेक्चर, की पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर इज फर्स्ट इज बेसिक्स, सेकेंड इज अबाउट डेंसिटी. हम पढ़ेंगे आज डेंसिटी के बारे में. थर्ड इज रिलेटिव डेंसिटी, आरडी लिख रहा हूं. फोर्थ इज डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर. डेंसिटी ऑफ मिक्सचर. और हम क्या करेंगे देखो, फिफ्थ में सम बेसिक थिंग्स अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स. So this is our key point
for lecture number 1. Okay, so at first I will remove them. Now we'll talk about density. Density is a very common word. See, density of a substance is defined as mass per unit volume. So density is defined as density of a substance is defined as mass per unit volume. See, what is density? This is a normal definition of density. The density of a substance is defined as mass per unit volume. ठीक है, density is defined as mass per unit volume. Now density को हम रिप्रेजेंट करते रो. ये जो साइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं देखो, दिस इज कॉल्ड रो, RHO, रो. सो रो इज इक्वल्स टू, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं ऐसे रो से, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, नाउ इफ दिस इज अ ग्लास लाइक दिस, और ये बीकर है, कुछ भी है, ग्लास है, बीकर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है. अब इस पानी का अगर मैं एक पॉइंट का डेंसिटी बताने जाऊं तो दोनों चीज़ें लगेंगे. इसका मास मान लो dV है और इसका मास वॉल्यूम dV है और मास dm है. तो इसका जो रो होगा, मतलब डेंसिटी होगा, वो होगा dV बाई dm बाई dV. क्या होगा? dm बाई dV. ये हो गया इस पॉइंट का डेंसिटी. अब डेंसिटी को हम डिफाइन तो करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से. एकदम बढ़िया. चलो अब इसका यूनिट देखते हैं. डेंसिटी का हम क्या देखेंगे? यूनिट देखेंगे. डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होगा? देखो, मास का यूनिट मीन्स kg और वॉल्यूम का यूनिट मीन्स मीटर क्यूब. तो दिस इज गोइंग टू बी kg पर मीटर क्यूब. सो डेंसिटी का जो यूनिट है दिस इज kg पर मीटर क्यूब. नाउ डायमेंशन. पहले तो kg है, मतलब मास है, तो m डिवाइडेड बाय l क्यूब. सो m l टू द पावर -3. दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी. सो आई विल रिपीट. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो डेंसिटी हमने क्या फॉर्मूला पाया? m इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू m by v, where m is the mass of the substance and v is the volume of the substance. अब अगर एक पॉइंट का हमें पता करना है डेंसिटी, तो हम करेंगे, मान लो dv है इसका वॉल्यूम और dm है इसका मास. तो रो इज इक्वल्स टू dm मास और dv क्या है? इसका वॉल्यूम. अब डायमेंशंस तो हमें पता है. डायमेंशंस क्या है? देखो, इसका डायमेंशन हो गया m बिकॉज ऑफ मास और वॉल्यूम है l क्यूब. हमने पहले ही पढ़ रखा है यूनिट क्या है? kg पर मीटर क्यूब. और ग्राम पर cc, मतलब सेंटीमीटर क्यूब को हम cc ही बोल सकते हैं, तो सेमी क्यूब. तो ये हो गया cgs. ठीक है. और पाउंड पर फुट क्यूब हो गया fps, पाउंड पर फुट क्यूब. ये हो गया fps में. ये ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ज़रूरी है. ठीक है. चलो, तो इसका डायमेंशन कैसे करेंगे हम? ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, तो l क्यूब. तो क्या हो जाएगा? m ऊपर आ जाएगा तो l टू द पावर -3. तो ये हो गया उसका डायमेंशन. अब हम पढ़ेंगे अबाउट रिलेटिव डेंसिटी, RD. Now we'll read about relative density.
रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब किसी के साथ हम रिलेट कर रहे हैं, किसी के साथ क्या कर रहे हैं हम, रिलेट कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है आर डी. सो आर डी इज इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस divided by density of water divided by density of water at 4 degree C temperature. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, density of a substance divided by density of water at 4 degree Celsius is called relative density. ये किसके साथ रिलेटिव है, देखो ये density of water at 4 degree Celsius टेम्परेचर के साथ क्या है, रिलेटिव है. तो मान लो इसका तो इस फिक्स्ड वैल्यू है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. अब ये वैरी करेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वैरी करेगा. अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, इसका क्या होगा, यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस. अब यूनिट क्या होगा तुम बोलो कमेंट में, मैं लास्ट में बोल दूंगा, ठीक है. इसका यूनिट अगर कुछ होगा तो आप बोलो कमेंट में, ठीक है, और मैं लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा. सो आई विल रिपीट, रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी है आर डी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. एकदम सिंपल चीज, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, एकदम शॉर्ट टॉपिक. तो देखो और एक बार हम इंडेक्स कर लेते हैं, इंडेक्स मतलब इंडेक्स नहीं, की पॉइंट कर लेते हैं हमारे लेक्चर का. देखो इधर कर रहा हूं की पॉइंट. पहले हमने पहला जो टॉपिक था हमारा बेसिक्स वो कवर हो गया है, सेकंड डेंसिटी कवर हो गया है, थर्ड रिलेटिव डेंसिटी कवर हो गया है, लास्ट में सब रिपीट करूंगा मैं. और उसके बाद वाला टॉपिक जो है क्या है, यस डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ. अगर दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, पहले का हम दोनों केस लेंगे, केस 1 और इधर लेंगे केस 2. मैं बाद में समझा रहा हूं, पहले हम दिखा रहा हूं सिर्फ. देखो केस 1 के अंदर क्या हो रहा है, केस 1 के अंदर हो रहा है कि दोनों का मास जो है सेम है. केस 2 में हो रहा है कि दोनों का वॉल्यूम जो है सेम है. फर्स्ट केस में मास सेम, दूसरी केस में वॉल्यूम सेम. मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, इसके साथ और कुछ मैं एक चीज ले रहा हूं, इसका कुछ डेंसिटी है पर्टिकुलर, और दूसरा ले रहा हूं, दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा, ठीक है. तो डेंसिटी होगा रो इज इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज कर देंगे. अगर मास सेम होगा तो हम देख रहे हैं, ठीक है. नाउ आई विल क्लियर द बोर्ड. Now we will talk about density of mixture. मैं दोनों केस बोलूंगा, एक है केस 1, दूसरा है केस 2. केस 1 और केस 2. केस 1 के अंदर जो है हमारा, अगर मास m1 एंड m2 क्या है, इक्वल है, और केस 2 के अंदर है v1 और वॉल्यूम दोनों के सेम है. अब अकॉर्डिंग टू केस 1 उसका जो फॉर्मूला आ जाएगा, दिस इज रो इज इक्वल्स टू 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय, रो को थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, एक सेकेंड, रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2. ये हो गया इसका फॉर्मूला.
अब अगर वॉल्यूम दोनों के सेम है, V1 इज इक्वल्स टू V2 है, तो क्या होगा, देन रो इज इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ टू मिक्सचर्स, अगर दोनों है मतलब दोनों मिक्सचर है, टू मिक्सचर कर दो, टू मतलब दोनों चीजें मिक्सड है, ठीक है। तो ये हो गया रो इज इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया रो इज इक्वल्स टू ρ1 ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस ρ2। अब अगर मान लो गिवन है कि द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड ρ1 2 kg पर मीटर क्यूब, और दूसरे का गिवन है, दूसरा मिक्स दोनों है, तो क्या है ये 4 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब दोनों का एक कंडीशन बताया गया है कि दोनों का V1 और V2 सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 मीन्स 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 kg पर मीटर क्यूब। अब अगर सेम चीज, वैल्यू सेम है लेकिन कंडीशन डिफरेंट है, बोला है कि m1 एंड m2 सेम है, तो क्या ये लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, 8 16 बाई 6, 16 बाई 6 kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। एकदम सिंपल चीज होगा, ठीक है। ओके, अब देखो डेंसिटी, अगर मान लो डेंसिटी गिवन है 2 kg पर मीटर क्यूब, आपको फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप चीज है, दिस इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू RD इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब और kg मीटर इनवर्स 3। तो अब अगर कोई भी एक सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी RD गिवन है 2 kg पर मीटर क्यूब, 2 kg पर मीटर क्यूब नहीं, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिटी नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। बिकॉज देखो यहां पे ऊपर भी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी कैंसिल आउट, तो इसका डायमेंशन और यूनिट कुछ नहीं है। तो देखो अगर ये एक फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो इसका रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 2, तो हमें डेंसिटी फाइंड करना है, तो 2 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो 2000 kg पर मीटर क्यूब। ये इमेजिनरी है, ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल चीजें मैं बोल रहा हूं। अब देखो क्या बचा, ये भी कंप्लीट, मैं लास्ट में सब रिपीट करूंगा। तो लास्ट में हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट व्हाई ब्लैक होल्स density is infinity. Why black holes density is infinity? This is out of syllabus question, so now we'll talk about this. Now we'll talk about why black holes density is infinity. This is not alpha, this is infinity. See, this is the most interesting question from the densities chapter. See, how black holes are made. I have already made a particular video on that, you might be check out, I will give the link in the description. For a star collapsed means because of high energy the sun collapsed. So if, sorry, a star collapsed, not sun. If this is a star and it has mass big M, it has a mass, huge mass, it has a huge mass, okay.
and if we put this mass into a small volume, if this is dV, then for this the density is equals to n huge divided by dV. So this tends to infinity. If a large amount of mass put into a small volume, is a large if a large amount of mass put into a small volume, then the density is infinity. That's why black holes, because black holes are made of star collapse. Because of star collapse, so means a huge amount of mass stored into a small volume, this is dV, hence this is tends to infinity. That's why black holes density is infinity. This is our full topic for today's class. Now we will know some basic things about hydrostatics and hydrodynamics. Hydrostatics and hydrodynamics. This is a small information about hydrostatics and hydrodynamics. In the next parts we will cover, because hydrostatics is a particular chapter, hydrodynamics also a particular chapter. These are in fluid mechanics. दोनों चैप्टर ही fluid mechanics के अंदर हैं, तो वो तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. कल से हम मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे hydrostatics. Okay, so we will again some basic knowledge, about them. Okay, so now I'll clear the board. अब देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने बोला पहले ही कि दोनों पार्ट्स हैं. एक है हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा है हाइड्रोडायनामिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स. ये जो वर्ड हाइड्रो है ना, इसका मतलब जो होता है वो पानी होता है, वाटर होता है, बेसिकली वाटर होता है, बट हियर क्या है वो लिक्विड. यहां पे क्या है वो, दिस इज लिक्विड. अब देखो हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया जाता है और हाइड्रोडायनामिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जो है हाइड्रोस्टैटिक्स. देखो हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो मीन्स मैंने बोला वाटर या फिर लिक्विड, यहाँ पे मैंने बोला है. तो हाइड्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब अगर वो रेस्ट में है, अगर रेस्ट पे है उसके तो हम स्टैटिक्स बोल रहे हैं ना. तो अगर ये पानी, मान लो ये पानी रेस्ट पे है, तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर व्हेन इट इज इन रेस्ट, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रॉपर्टीज ऑफ, मैंने वाटर बोला कि कोई भी लिक्विड है, व्हेन दे आर एट रेस्ट. लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है. ठीक है, तो देखो what are the properties of water, पब्लिक मैंने गैस और लिक्विड कर दिया है, इन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हो, आप कर दो फ्लूइड कर दो. ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हेन दे आर एट रेस्ट. इसका जो स्टडी है, ये प्रॉपर्टी का जो स्टडी है, मतलब रेस्ट में अगर फ्लूइड है तो उसका जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स. सो हाइड्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी विल डील विद the fluid when they are
दे आर एट रेस्ट। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, उसका जो स्टडी है दिस इज हाइड्रोस्टैटिक्स। और हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब है फ्लूइड्स, ये जो फ्लूइड्स है अगर मोशन पे है, डायनेमिक्स मतलब मोशन, तो फ्लूइड व्हेन फ्लूइड्स आर इन अ मोशन, सो द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स व्हेन दे आर इन अ मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक्स में हम कुछ यू टर्म पढ़ते हैं, उसके अंदर हम डेंसिटी पढ़ लिए, एक टर्म हो गया, प्रेशर, पास्कल्स लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हाइड्रोडायनामिक्स में हम जो पढ़ेंगे वो होगा पहला, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक विस्कोसिटी, बार्नौलीज थ्योरम एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर, स्टडी फ्लो, लैमिनर फ्लो और स्टडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, और लैमिनर का ही स्टडी है, ठीक है, दोनों सेम, लैमिनर और स्टडी फ्लो क्या है, सेम है, टर्बुलेंट फ्लो। तो ऐसे कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे in the next upcoming lectures. So if you are liking the video, then please share to friends and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to getting the notification. Thank you. Bye bye. Take care of yourself and stay motivated.